Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is going to be your reading for the zodiacs. This is a zodiac reading for all of you, and I want you people to, first of all, I'll give you the instructions. And I want to tell you guys that this is going to be a video which is going to be a lengthy video. So अगर आप लोगों ने मेरा last video देखा होगा, you might have observed कि वो एक लंबा video था. एंड ऑफ कोर्स ऐसे डिटेल्ड वीडियोस ही बनते हैं जनरली. फिलहाल के लिए मैं थोड़े से ऐसे लॉन्ग वीडियोस ही बनाना चाहती हूँ, बट आई विल ट्राई टू पुट ऑन द टाइम स्टैम्प्स बिकॉज इट मेक्स थिंग्स वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी easy. So, what I'll be doing in this video, I will take out a message for each zodiac, one message for the coming time, okay? Till the next time, I'll post it, okay? And then I will clarify it with the tarot cards, all right? We'll use the tarot cards for that. Then I will pull out one more divine message from the universe. But we will not pull out any specific detailed reading because ये एक साथ हम इसमें बना रहे हैं. We are going to put on timestamps for all zodiacs. So from the earth signs, then next will be the fire sign, next will be the air sign, and last will be the water signs. As you all know, this is my sequence that I like to post. So we'll start the reading with the earth signs. But before that, I want to tell you guys that I really loved to see that you people watched my previous video. Like the average of the video watching was really good. Touch wood. I'm very happy about it. Thanks to you guys. And I want you people to just see the video and put in your if you can, put in your reviews or feedbacks that what did you feel about the video. आपको कैसा लगा वो वीडियो देखकर. अपने आप को एक्सप्रेस करें आप उसमें कमेंट सेक्शन में. आई विल लव इट. एंड इफ यू पीपल कैन लाइक द वीडियो, that is going to be really amazing. So before we start the video, I want you guys to like the video, subscribe to the channel, and share it with your friends. Okay, you can also check out my Instagram handle that I've posted over there, Astro Tarot with Kyra only. So why I call with Kyra because sometimes people might feel that what we don't understand. So this is just my habit of calling it Astro Tarot with Kyra. Earlier I kept the handle as with Kyra, but then I thought that I don't want a with in between, so I changed it. So I am utilizing the mic situation with a trendy thing. So if by mistake अगर आपको ऐसा लगे कि वॉइस थोड़ी बीच बीच में दूर से आ रही है ये वो, so just try to please adjust, but I'll try my best to give you a good voice quality as much as I can. Okay, so let's start with the video. We have a big intro now. I think this will be the distance of the mic, and I guess it's going to be a decent amount of um, this distance, right? Okay, so let's start with the video. So what we'll be doing now, हम पहली चीज़ तो yes of course not to forget, ये वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी का मिक्स रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली हिंदी. Okay, so what we will do now, first let me see the, yeah, camera angle is, yeah, camera angle is good, right, I'm audible, right? Okay, yes, I am audible. So what we'll do now, guys, we will take out a unicorn card for you for the first zodiac. Then I will clarify with the tarot, and the last message will be for you from the universe is going to be from Archangel Michael. Although I didn't need to take out two universe messages, but I just feel like doing it, so I'll do it this time. Okay. So we are starting off with Earth signs, Capricorn. Okay, let's take out your this. Let's call in the spirits. Okay. अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा माइक गिर गया था एंड आई वाज लाइक ओके, गुड स्टार्ट ऑफ द वीडियो. Wow, nice. I just loved it. Okay, so Capricorn. What is the message for Capricorns from the universe currently?
So shall we do it like um next week? Do you want me to do it for next week or the coming week? Actually, I don't want to put a time frame in this now. Honestly, I don't want to put a time frame, but I need to somewhere, I feel sometimes. So yeah, as I'll be posting this video on the Friday, that is 4th of July. So what we'll do is we will post this video for the coming 1 week. Okay, you can expect that. So what are the messages for Capricorn for the coming week? आने वाले एक हफ्ते के लिए Capricorns के लिए क्या messages देना चाहते हैं Unicorns? Okay, let's see that. Okay, I'll pull out just the first card. Perspective. Amazing. Nice. Um, Bottom of the deck is birth. So maybe be receptive to a new idea, child, or situation. Maybe some of you have given birth to a new child or is going to give birth to a new child. So let's see perspective. Unicorns are seventh dimensional beings of light, so they see all things from a divine perspective. Their guidance is to examine the situations in your life through unicorn eyes, then take spiritually pure decisions. Affirmation for you is I look through unicorn eyes. सो बेसिकली आपको अपने पर्सपेक्टिव पर ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पर कैप्रिकॉन. आपको अपने नज़रिए पर, अपने सोच पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपनी सोच को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. ओके, दैट इज़ रियली वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, अगर आप झगड़े के बारे में सोचेंगे तो झगड़े होंगे, अगर आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचेंगे तो फ्रेंडशिप होंगे, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा. In short, this means this only, right? All right, now let's see from the tarot cards. Actually, I'm using a different candle right now. I don't know why it's melting so fast. Okay, all right, candles, I understand you love me, you want more of it. I'll light the candle for you, don't worry. Okay, what are the messages for Capricorn for the 1 week, for the coming week? कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं टैरो कार्ड्स? लेट्स सी दैट. Okay, it's the lovers. I'll put it like this for various reasons. Then we have two of swords and the high priestess. Bottom of the deck is the magician. All right, I feel that many of you Capricorns right now are manifesting right now very very strongly. बहुत सारे कैप्रिकॉन्स इस टाइम पर मैनिफेस्टेशन के लिए लगे हुए हैं and they want everything right now. They don't want to compromise in anything. They are like, give it to me all. मुझे सब कुछ चाहिए. I want all the good things right now. I don't want to compromise. And अभी आप लोग काफ़ी इंट्यूशन पर भी जाना तो चाहते हैं, बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली डूइंग इट. ठीक है, या फिर कोई ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं जो कि ऑकल्ट साइंस में है, या फिर आपको अपने इंट्यूशन की मदद से गाइड कर सकते हैं. ओके, सॉरी, गाइड कर सकते हैं. ऑलराइट, आपको अपने इंट्यूशन की मदद से गाइडेंस मिल सकती है किसी के इंट्यूशन की मदद से, या फिर आप खुद के भी इंट्यूशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल द गुड थिंग्स. मुझे लेकिन ऐसा भी नज़र आ रहा है दैट अनफॉर्चुनेटली you are not open with your um, crown space. Like your crown chakra is either blocked. Okay, your subconscious mind is either blocked, you're not able to take the right decisions. All right, but still you are trying to manifest.
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आप कोई चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड योर माइंड इज ब्लॉक्ड, यू डोंट नो, यू आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट, आप स्ट्रेट नहीं सोच पा रहे हैं. So that is something you need to work upon. Okay. Okay, let's see that what is the message that the universe wants to give you as a suggestion. तो ये पर्सपेक्टिव से तो हमें ये पता चल रहा है कार्ड से दैट दिस इज व्हाट हैज बीन टिल नाउ. ठीक है. अब लेकिन आपको क्या करना चाहिए एज अ गाइडेंस, व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू एज अ गाइडेंस, दैट वी आर गोइंग टू सी. आई थिंक मैंने कार्ड की पोजीशन सही नहीं रखी है, मुझे इसे यहाँ रखना पड़ेगा. ओके, लेट्स सी. ओके, let's see. For Capricorns, what is the guidance from the Archangel Michael? बस कुछ ही दिन आप इस आर्कएंजल माइकल के डेक को देखेंगे. ऑलराइट, फिर मैं आपको बता दूं कि मैं अपने रीडिंग्स में आर्कएंजल माइकल का ये वाला डेक स्पेसिफिकली नहीं यूज़ करूँगी. आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट राइट नाउ. मैं नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रिजर्व देम. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट अगेन. Okay, and I don't want to lose it. I don't want to lose its shine, its quality and everything. मैं इसे बहुत रेयरली यूज़ किया करूँगी जब मुझे बहुत स्ट्रांगली लगेगा कि इसके अलावा और कोई मुझे डेक से आंसर नहीं मिल पाएगा, तभी मैं इसे यूज़ करूँगी. इनफैक्ट आई इवन डोंट यूटिलाइज इट फॉर माई ओन पर्सनल यूज़. सो आई एम सॉरी गाइज. So till I am able to do it, I am doing it. Okay. Okay, let's see what are the suggestions that the universe wants to give to the Capricorn. Your home is protected by angels. Okay. Archangel Michael, this is the prayer for you right now. Archangel Michael, thank you for watching over my home and its inhabitants. I ask that you post guardian I ask that you post guardian angels at each window and door, ensuring its security. Thank you for guiding my finances so that I can easily afford to pay my rent, mortgage, or taxes. So, you might be worried about your financial situations right now and you want to work upon it. So here is a confirmation for all the Capricorns that everything is being taken care of. आपको किसी को भी लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है. Everything is fine. It's completely fine. You don't have to worry about anything. तो आपकी जो worry है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. And that is why I see you being so in a manifestation mode, and you're completely trying to connect with your intuition that whether you are going right or not. But I think जब तक आप अपने perspective को सही नहीं करेंगे, you will not be able to unclog your mind. Okay, so this is a message for the Capricorns. All right, let's start with Taurus right now. I think meanwhile, I'll be able to get some time to talk to you people. I'm actually waiting for, my live session to start on YouTube. बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मेरा ना लाइव सेशंस वाला ऑप्शन अनलॉक हो जाए. सो आई कैन टॉक टू यू पीपल बेटर ऑन लाइव, है ना. मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक दिस माइक सिचुएशन हैज़ टू बी चेंज्ड क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा जैसे मैं चाह रही हूँ अभी. ओके. All right, Taurus, let's see that what are the messages for you from the unicorns that you have been, feeling till now and which is going to help you with the coming week. Okay, so we will take out this unicorn suggestion for you first. Actually, it's not a suggestion, but it's a message from the universe for you as an advice. Actually, not an advice, just a general message. Advice you will get by the end. Okay, let's see what are the messages for Taurus right now from the unicorns. What are the messages for Taurus right now from the unicorns?
Okay, Taurus. Help. The help you need is on its way, so keep watching for it. All right. Bottom of the deck is soul satisfaction. Aim for that which makes your soul rejoice. सो बेसिकली अगर आप किसी हेल्प को ढूंढ रहे हैं, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प आपके लिए आ रही है, आपके लिए रास्ते में ही है हेल्प, वो आने वाली है आप तक. द यूनिकॉर्न्स आर जस्ट अ थॉट अवे. आस्क देम फॉर द हेल्प यू नीड एंड ट्रस्ट दैट दे विल ब्रिंग इट टू यू. एफर्मेशन फॉर यू इज द यूनिकॉर्न्स आर हेल्पिंग मी. सो बेसिकली काफ़ी सारे टॉरसेस को अभी हेल्प की ज़रूरत है. तो अगर आप किसी भी तरीके का हेल्प चाहते हैं, किसी छोटी चीज़ के लिए, बड़ी चीज़ के लिए, तो अगर आप यूनिकॉर्न से उस हेल्प को मांगेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आपको मांगनी चाहिए हेल्प. Let's see what are the messages for you from the tarot cards. Basically, what you need to do for the coming 1 week. Let's see टॉरस के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स. टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अभी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स. लेट्स सी दैट. Actually, I was supposed to post this video few days back, but then I got occupied in some things, so I couldn't. 5 of Cups, the Tower, okay, and 3 of Swords. Oh my God, what just happened? Ah, 7 of Pentacles. Okay, I know what just happened. All right, so I think Taurus, you are broke right now, and it is coming to you like a shock. Okay, or maybe you have been waiting for something to happen, but it has not happened, and something has come to you like a news, like an update. Okay, and it has given you a shock, and now you are completely heartbroken. Oh my God. That is really sad to see with you, Taurus. I mean, you have already gone through a lot of things in life, and now again, this shocking news is something that you will not like. So, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ये पैसे का एक सिचुएशन है, मनी से रिलेटेड सिचुएशन है, एंड यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स एंड देन ओनली यू विल रिसीव सम हेल्प इन दिस केस. ओके, आपको अभी चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिवली सोचने की भी ज़रूरत है. चीज़ों का सिर्फ एक नेगेटिव पार्ट मत देखिए, उनके अंदर का पॉजिटिविटी भी देखिए, उनकी अच्छाई भी देखिए अभी. ठीक है, और जो भी शौक आपको अभी मिल रहा है, या फिर जो कुछ भी एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, एक शेकअप जो आ रहा है, उसको लेकर हर्टफुल होने के बजाय अगर आप उसके रिगार्डिंग एक हेल्प मांगेंगे यूनिवर्स से, तो मे बी दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर थिंग फॉर यू. ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू नीड टू understand right now. All right, let's see that what is the message for the Taurus from the Archangel Michael right now. Okay, तो देखिए, मैंने जैसा आप लोगों से कहा था कि मैं आर्किंजल माइकल के डेक को, ये वाला स्पेशली, ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी. मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था. सो मे बी आने वाले कुछ वीडियोज़ में ही यू विल सी मी यूजिंग दिस डेक, देन आई विल प्रिजर्व इट. मैं आर्किंजल माइकल का एक दूसरा डेक ज़रूर ले लूँगी, बट नॉट दिस वन गाइज. आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट. मे बी ये सुन के आपका ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो गया होगा. आई होप सो इससे बड़ा हार्ट ब्रेक आपको ना मिले. ओके, let's see what are the messages for you, Taurus. A favorable outcome. Your prayer is, thank you for the beautiful outcome to this situation, which is perfect and fair for everyone involved. Thank you, Archangel Michael, for helping me trust and have faith. ओके, सो बेसिकली इसमें भी हेल्पिंग वर्ड आ ही चुका है. सो बेसिकली जो हेल्प आपको चाहिए ना, एक सिचुएशन से निकलने के लिए, एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो हेल्प आपके तरफ यूनिवर्स ऑलरेडी भेज रहा है. सो मे बी यू हैव बीन स्टक इन समथिंग एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू शो अप, एंड इट हैज़ शोन अप टू यू, एंड नाउ यू आर ग्लैड कि ये चीज़ हुई. वट एवर हैपन, भले ही वो चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो, कुछ लोगों को पेन दे, कुछ लोगों के लिए पेनफुल हो, बट एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी दैट नथिंग इज हिडन फ्रॉम यू. नाउ एवरीथिंग इज रिवील्ड. आपके सामने सब कुछ आ चुका है ना, जो आने की ज़रूरत है.
So that's all for reading Taurus. I'll see you guys in the next week. And thank you. We will go back to now. We'll go back to the Virgo's reading now after you. ऑल राइट, आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और इसको ख़त्म करते करते 1 आवर तो हो ही जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अभी तो हमने वर्को का भी एक्चुअली ख़त्म नहीं किया रीडिंग. सो लेट्स सी. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मेकिंग सच वीडियो, सो आई एम नॉट एक्सपीरियंस इन दिस, बट आई विल बी एक्सपीरियंस इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग सून. तो मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहूँगी मैं कि हाउ मच टाइम आई विल रिक्वायर. So basically, I had to shoot this video on Wednesday or post this video on Wednesday, but then I couldn't क्योंकि I was occupied in something, and I wanted to post a love reading today on Friday. So that was the plan, but it's okay, कोई बात नहीं. जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. We all know that. Hi Virgo, let's see that what is the message for you from the unicorns for the coming week. Let's see that. So basically मैं आप लोगों के लिए पहले एक यूनिकॉर्न का मैसेज निकालूंगी जो आपको काफ़ी हेल्पिंग या सपोर्टिंग रोल करेगा इस रीडिंग में, एंड देन आई विल गिव यू अ सजेशन फ्रॉम अनदर डेक. ओके, सो यू कैन सी दैट. Alright, Virgo, this is the message for you. Soul satisfaction. Aim for that which makes your soul rejoice. Alright. आपको ऐसी चीज़ के लिए एम करना है जो आपकी सोल को रिजॉइस करे. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज इंट्यूशन. लिसन टू योर इंट्यूशन, टू योर इनर विजडम. Alright. Amazing. Great. Let's see what is the message for Virgo from the tarot cards. All right. देखते हैं कि वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स. वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स. चलिए देखते हैं. All right. 10 of Swords, the World, and King of Swords. Bottom of the deck is Knight of Wands. All right. मुझे ना डर लग रहा है कहीं बुझ ना जाए. I think I should change it. Wait. So Virgo, I feel that for some of you, not for everybody, there has been an ending in something. किसी चीज़ की, किसी सिचुएशन की एंडिंग हुई है और you are somewhere prepared for it. You knew it somewhere. या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये एक एंडिंग ऐसी हुई है विच वॉज नीडेड इन योर लाइफ. अगर ये नहीं होती तो आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते. आपके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल क्लोज नहीं हो पाता, विच हैज़ नाउ क्लोज्ड, विच हैज़ नाउ एंडेड. ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि दैट आफ्टर दिस एंडिंग नाउ यू आर फाइनली being very practical and being very logical. Okay, you will not make any mistake. Okay, and I also see you going forward in your life with a very good energy, with a very good passionate energy, and you are happy. You are happy that it's happening now. Okay, and आपको भी अब संतुष्टि मिल रही है इस चीज़ को देखने के बाद that okay, finally it's happening. Yes, now I can finally do it. Whatever was required, I can finally do it now. So मुझे ये भी नज़र आ रहा है that for some of you it's like जो पैशन की कमी एक थी आपके अंदर, या फिर जो एक एनर्जी की कमी थी, अब वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कोई सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए.
एंड यू आर इन स्पीड नाउ। आप बहुत स्लो नहीं रहेंगे, आप बहुत स्पीड में रहेंगे, चीज़ों को जल्दी जल्दी करेंगे, आप धीरे धीरे नहीं करेंगे, आराम से नहीं करेंगे, आप सिचुएशन के हिसाब से जो स्पीड होनी चाहिए उसी स्पीड में करेंगे। ऑल राइट, दैट्स अ ग्रेट थिंग। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल माइकल फॉर द वर्गोस, है ना। चलिए देखते हैं। ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको आने वाले इस वीक के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स। लेट्स सी दैट। वर्गो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली वर्गो, वट एवर इज हैपनिंग, जो कुछ भी होगा आपके सोल को सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। यू विल बी सेटिस्फाइड। फॉर अ वेरी ऑफ यू आई विल से दैट यू विल ट्रैवल और प्लान टू ट्रैवल। दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। You are going to travel. Okay, I'm sorry. Okay. Admit the truth to yourself and act accordingly. The prayer for you is, I appreciate your support in helping me face my feelings with grace and acceptance so that I can be lovingly honest with myself and others. Thank you, Archangel Michael, for giving me courage and strength. So maybe this situation, this ending will require some courage and strength also, Virgos. एंड आपको अपने अंदर एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी इस टाइम पर, खुद को भी एक्सेप्ट कराना होगा जो भी ये एंडिंग हुई है, एंड लोगों को भी एक्सेप्ट करवाना होगा। ओके, देन ओनली यू कैन मूव इन द राइट डायरेक्शन। Basically, that is the message for you. Okay, that's all for you, Virgo. Now let's go to the fire signs. Aries. Okay, I think अब मैं थोड़ा स्पीड में आ रही हूँ। Okay, when it's coming to the reading, but of course देखिए जिन readings में explanation की ज़रूरत पड़ती है वो तो पड़ती ही है। You cannot leave it like that, है ना। At least मैं तो नहीं कर सकती, I cannot leave it like that. If it is required, I will do it. As simple as that. All right, अब हम आएंगे fire signs पे, Aries. All right, excited, Aries? Okay, Aries. Let's see. Okay, Aries, welcome to your reading. I'll be taking out a message from you from for you from the unicorns, and then I will pull out some tarot cards, and then I'll suggest you with one more oracle deck. So let's start with the reading, Aries. Okay, let's see what are the messages from the unicorns for Aries. मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स, चलिए देखते हैं। Okay, let's see, Aries. Aspiration. You are unlimited, so aim for the stars. Great. Aspiration. You are unlimited, Aries. Don't restrict yourself. Bottom of the deck is manifestation. Focus on a vision beyond yourself and your unicorn will help you. आपके एस्पिरेशंस अभी बहुत हाई होनी चाहिए, आपको भी बड़ा सोचना चाहिए, अभी आपको छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। ये टाइम है अपने एस्पिरेशंस को हाई रखने की, अपनी सोच को हाई रखने की, अपने एनर्जीज को भी हाइटन रखने की, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं करोगे आप नई शुरुआत नहीं कर पाओगे, फिर आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे बेसिकली। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द कमिंग वीक। मेष राशि वालों के लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स, चलिए देखते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स। कम ऑन, लेट्स सी। The moon, the empress, and
Ten of Swords. Bottom of the deck is Four of Pentacles. Okay. Hmm. आई थिंक आपको ना पहली चीज़ तो मैं बता दूँ बहुत स्ट्रांगली, आपको ना अभी कुछ लोगों से खतरा है। कुछ लोग आपके बारे में या तो उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं, या फिर वो आपके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, या फिर वो आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, एंड उन चीज़ों का आप पर फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको इस बारे में पता है तो, एंड अगर नहीं पता है तो जब कभी भी आपको पता चलेगा, आपको इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा एरीज़, ओके? या फिर आपको इस चीज़ को लेकर अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा-सा अपना ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ आप पर थोड़ा-सा खतरा है। People are insecure, people are jealous of you, people are gossiping about you, okay? People are, and those people are not very good people, of course. वो लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी काम के लोग नहीं हैं, they are talking rubbish about you. But the good thing is that you are taking care of yourself. You are like, okay, बहुत कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में, but I will take care of myself. I will not lose myself in between. That is a good thing. कि आसपास की नेगेटिविटी से आप खुद को बचा रहे हैं एंड खुद का ध्यान दे रहे हैं। सी यू आर इन द सेंटर राइट नाउ, एंड यू विल ऑलवेज बी इन द सेंटर, यू हैव ऑलवेज बीन इन द सेंटर। लोग आपके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बट आपको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपना ध्यान देना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप शायद सिक हैं, या फिर आप थोड़े से बीमार हो रहे हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सीजनल थिंग्स और वेदर, जो वट एवर इट इज़। बट थोड़ा-सा इसका असर मुझे नज़र पे भी लगता है, मेबी थोड़ा-सा कुछ लोगों को नज़र भी लग रही है, या लगी हुई है, या लग सकती है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप एरीज़ स्पेसिफिकली। अम, आपकी ब्यूटी को देखकर भी लोगों की नज़र लग रही है, आपकी खूबसूरती देखकर भी उस पर भी नज़र लग रही है। इसके वजह से उसका असर आपके हेल्थ पे भी आया है, सो यू नीड टू डू सम वर्ड ऑफ इविल आई, यू रियली नीड टू, ओके? थोड़ा-सा भी आपको अपना सेविंग्स करना चाहिए, पैसों को ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बीच। You should take care of your money also, your finances. That is a underlining message for you. Underlining. Okay, now let's see that what are the messages for you from the Archangel Michael. Okay, let's see that what are the messages from the Archangel Michael for Aries. आपके लव लाइफ पे भी थोड़ी नज़र पड़ रही है एरीज। जो भी लोग के लव लाइफ में कुछ स्टार्ट होने वाला है, या फिर कुछ अच्छा चल रहा है, या कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, अगर उस पे भी नज़र पड़ रही है तो आपको ध्यान देना चाहिए उसका, ओके? प्रोटेक्शन का अपना ध्यान देना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए एनर्जेटिकली अपना। इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग दैट, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ऑल राइट, decide to be happy now. The prayer for you is, thank you for helping me open my heart to happiness and joy and bliss. I am now willing to see all of the goodness in my life. तो बेसिकली अच्छी चीज़ ये है कि आप आपके इर्द-गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, आप उससे अनबॉदर्ड होके अपनी लाइफ़ की खुशियों पे फ़ोकस कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, बिकॉज़ दैट इज़ समवेयर यू नीड टू डू, ओके? दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो फिर जो कुछ भी असर है नेगेटिविटी का, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा, व्हिच इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन अ गुड वे। सो आपको आज हैप्पी होना है, कल की चिंता नहीं करनी है, ना आने वाले कल की करनी है, ना ही बीते हुए कल की करनी है। जो होगा अच्छा होगा, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो दैट वाज़ ऑल फॉर यू एरीज़, एंड नाउ वील गो टू लियो। एरीज़ की यही क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। वेरी नाइस एरीज़। All right. Now we'll see Leo's reading. Okay. I'm little concerned for you, Leo, now. आप लोगों की रीडिंग जब भी मैंने आज तक की है, एंड जो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट की है, ऑफ कोर्स उसे देखकर मुझे हमेशा डर लगा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट राइट नाउ आई एम नॉट स्केर्ड, आई एम जस्ट लिटिल अलर्ट,
टू सी अटेंटिव लिटिल, टू सी आपकी रीडिंग कैसी आएगी. All right. So, hello, Leo. Welcome to your reading. I'll be looking at your message from the universe, and then we'll pull out some tarot cards for you. And then I will give you a suggestion from another oracle deck. All right. So, let's see. Leo, what do we have for you for the coming week? सिंह राशि वालों के लिए अभी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमें यूनिकॉर्न्स? लेट्स सी दैट. Okay, I think this is the message. तो लियो, मैंने ना आपके लिए इसमें दो कार्ड्स निकाले हैं. मैं ना बाज नहीं आती हूँ, आई एम टेलिंग यू. सो एक जो आ रहा था दैट वाज डिग्निटी, मे बी इट इज़ फॉर सम ऑफ यू. होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू. एंड एक जो कार्ड आया है दैट इज मूविंग, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मोर फिजिकली, मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली. बॉटम ऑफ द डेक इज फ्यूचर, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप फ्यूचर में ही मूव कर रहे हैं ना. लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, लियो. सो वील पुट इन बोथ द कार्ड्स. ओके, आई होप कि ये आ जाए. यस, आ जाएगा, है ना. ग्रेट. ऑल राइट, लेट्स सी. ओके, नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर लियो. लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के आने वाले एक हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स. चलिए देखते हैं. Three of Swords, the Lovers, and King of Pentacles. Bottom of the deck is Five of Swords. देखा, मैंने कहा ना आप लोगों को कि जब मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ तो कोई ना कोई ऐसा रीडिंग ज़रूर आता है लियोस के लिए जो कि ये साबित करता है दैट समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड इन अ लाइफ, विच इज़ द रियलिटी. तो बेसिकली आपके साथ हुआ ये, जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक पैटर्न सा था, अभी भी जो कि कंटिन्यूएशन में है काइंड ऑफ, विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग. होपफुली, आई होप सो, आई होप सो. सो आई सी दैट यू आर इन पेन, यू आर इन एक्सट्रीम पेन. अब बहुत ज़्यादा हर्ट है बिकॉज ऑफ योर लव सिचुएशन राइट नाउ, बिकॉज ऑफ योर मे बी रिलेशनशिप और योर मैरिज. एंड अब आप समझ चुके हैं कि अब मुझे टाइम आ चुका है कि अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाऊं और इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग. इसलिए डिग्निटी का भी कार्ड आपके लिए आ रहा था कि अब आपको इस सिचुएशन में कुछ बचा नहीं रह गया है. यू हैव रियलाइज्ड कि अब इस सिचुएशन में और भी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है. नाउ फाइनली आई विल एंड इट बिकॉज आई हैव टू, देयर इज़ नो अदर चॉइस. एंड अच्छी बात यह है कि अपने आप को आप एक प्रैक्टिकली स्टेबल और एक प्रैक्टिकली अबंडेंट इंसान बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, विच इज़ वेरी गुड थिंग. अब आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं एंड फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं. आफ्टर रियलाइजिंग कि इस लव सिचुएशन में तो अब कुछ नहीं होने वाला, जो होगा अब फ्यूचर में देखा जाएगा. एंड यू आर समवेयर हैविंग फेथ इन द फ्यूचर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ओके, all right, let's see that what are the messages for you from the archangel Michael. It is a very clear cut message. I don't think इसमें बहुत explanation की need है. Cards बहुत ही clear है that you are moving forward, you are moving forward from a situation. आप एक situation से बाहर निकल रहे हैं, that's all. And you are taking care of your dignity यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी भी है. It is important. अपनी इज्जत का ध्यान देना, अपनी इज्जत की परवाह करना बहुत ज़्यादा important है. अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये काम आपको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था लियो एक्चुअली, पर इट्स ओके. कहावत है हिंदी में, दे रहा है दुरुस्त है. चलिए, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू. पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स. ओके, the prayer for you is, thank you for tucking me into bed tonight and helping me enjoy
a wonderfully restful night's sleep. Archangel Michael, I invite you into my dreams as my teacher, guide, and healer. Please allow me to understand this. Describe a specific situation on a spiritual level and give me guidance. सो बेसिकली आप जिस सिचुएशन से अभी बाहर निकल रहे हैं ना, आप उसको एक डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके उस सिचुएशन को आप मेंशन करिए अपने दिल में, और आप उसे मेंशन करिए कि आर्कएंजल माइकल या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, कि वो आपके सपने के थ्रू आपको गाइड करें कि ये जो कुछ भी हो रहा है या ये जो कुछ भी हुआ ये क्यों हुआ, और आपको इसमें क्या करना चाहिए। स्पिरिचुअल लेवल का जब आप इसमें गाइडेंस लेंगे तब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आप अगर सिर्फ माइंड से सोचेंगे या फिर सिर्फ ईगो सेल्फ से सोचेंगे या सिर्फ प्रैक्टिकली लॉजिकली एक लॉजिकल आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे एक सिचुएशन को समझने के लिए, तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपको इसके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि आपको अपने सपने के थ्रू मिल सकती है। तो आप अपने अभी सपनों पर बहुत ध्यान दीजिए। यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट यू सी इन द ड्रीम्स। ओके, तो अपने ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, अपने सपनों पे ध्यान दीजिए कि आपको आजकल कैसे सपने आ रहे हैं, उन सपनों में क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, लोग आपसे क्या कह रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये मत सोचिएगा कि हम जो सोचते हैं वही हमारे सपने में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मुझे सपनों के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं। आई चैनल मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। सो आपको भी अपने सपनों पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। यू विल गेट गाइडेंस, एंड आपको ये गाइडेंस मांगना भी चाहिए इफ़ यू वांट अ पीस ऑफ माइंड। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को पीसफुली एंड करें और आप इससे अच्छे से आगे बढ़ जाएं, तब आपको ये मांगना भी चाहिए क्लैरिफिकेशन, सो दैट आपको बाद में ये चीज़ें बॉदर ना करें कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। ऐसे सवाल ना करें आप यूनिवर्स से। दैट वाज ऑल फॉर योर रीडिंग, लियो, and I hope that you guys will like this. Okay, that was it for Leo. Now we'll move on to Sagittarius. Okay, all right. काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर कि लियो फाइनली अब आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। दे आर गोइंग मूविंग फॉरवर्ड। अमेजिंग लियो, वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। बट अब आप आगे बढ़ जाइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एनर्जीज में दिख रहा है बट आप प्रैक्टिकली नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, या आप खुद के साथ अनफेयर हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ओके, ऑल राइट। सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड to see the reading for Sagittarius, right? Okay, Sagittarius. Hello, Sagittarius. Welcome to your reading. We are going to look at your messages from the unicorns, and then we will see some cards from the tarot for the coming week. And then I will give you a suggestion from one of the oracle cards. Let's start with your reading, Sagittarius. Sagittarius यानी कि धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिकॉर्न्स? ऑल राइट, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिकॉर्न्स? मैसेज आ चुका है। ओके, वी हैव अ मैसेज। सो बेसिकली इट सेज प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे। आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत है या किसी से बात करने की ज़रूरत है जो आपका या तो मन हल्का करें या तो आपको आपके लाइफ में इस टाइम पर एक अच्छा गाइडेंस दें, एक अच्छा सजेशन दें। इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी एनीबडी। लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस। All right, what are the messages for Sagittarius? Let's see Sagittarius के लिए अभी क्या messages देना चाहते हैं cards. चलिए देखते हैं। Let's see that. Two of Wands, the Devil, okay, and Queen of Cups. Bottom of the deck is Knight of Wands. All right. Basically, you are having a future planning somewhere,
or you are trying to look at a new perspective in terms of a situation, किसी situation को लेकर. And I also see कि आप ना अभी एकदम से यू आर कम्प्लीटली इन योर हेड सैजिटेरियस, कम्प्लीटली आप अभी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव लोगों के बीच में हैं, और उसका असर आप पे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. या फिर मैं ये कहूँगी कि आपके अंदर का एक टॉक्सिक साइड है जो कि अभी निकल रहा है इस टाइम पर, एंड इट इज़ मतलब वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है. इट इज़ रियली गेटिंग हाई ऑन यू, एंड आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है इस चीज़ का अभी. ठीक है. और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक टॉक्सिक सिचुएशन में ऑलरेडी हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, एंड आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है. कुछ लोगों को बुरी नज़र भी लग रही है, कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो रहा है. ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है. ठीक है. और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर टेकिंग सम हेल्प फ्रॉम द डेविल टू हैव अ ब्राइटर फ्यूचर, चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए. बिकॉज विथ क्वीन ऑफ कप्स आई डू नॉट सी यू बीइंग वेरी, राइट नाउ आई डू नॉट सी यू बीइंग वेरी ओपन टूवर्ड्स थिंग्स. मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी इमोशनली यू आर नॉट इन द राइट स्पेस, यू आर नॉट. ठीक है. और आप ना अगर इमोशनल हो भी गए अभी, तब जाकर शायद कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद अब इमोशनल होने के बाद आप कुछ सही डिसीजन ले पाओगे. अभी आपका इमोशनल होना भी कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है. अगर अभी आप इमोशनल नहीं होगे ना, तो फिर आप ना लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके गलत डिसीजंस भी ले सकते हो. इसीलिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि गाइडेंस अगर आप मुझसे लोगे या फिर किसी और से लोगे तो शायद आप इतना अग्री नहीं करोगे, लेकिन वही गाइडेंस अगर आपको कोई आपके फ्रेंड देंगे तो मे बी आप अग्री करोगे. ये भी एक चीज़ है. सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि चीज़ों को नेगेटिवली मत सोचिए अभी, चीज़ों को पॉजिटिवली सोचिए. काफ़ी नेगेटिव भी हो रहे हैं आप इस टाइम पर किसी चीज़ को लेकर. ठीक है. यू नीड टू कम्युनिकेट विद समवन राइट नाउ. आपको भी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ना कि अकेले रहने की ज़रूरत है. ठीक है. सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैसेज फॉर यू फ्रॉम आर्कएंजल माइकल. Okay. Sense of humor. The prayer for you is, thank you for helping me see the humor in this situation so I can lovingly laugh at human nature. I am willing to view my experience in a new light in order to attract love and healing energy. बेसिकली अभी आपको थोड़ा सा ना शायद कॉमेडी करने की ज़रूरत है. अपने लाइफ, आपकी लाइफ में आपको हीलिंग किसी चीज़ सिचुएशन से तब मिलती है जब आपके लाइफ में फ़नी फैक्टर्स आते हैं या फिर जब लाफ्टर आता है. ठीक है. जब आप हंसते हैं, जब आपको कोई हंसाता है, तब आप खुश होते हैं, तब आप हील करते हैं. सैजिटेरियस, दिस इज़ योर बेसिक ट्रेट. तो जब आप हंसेंगे ना, तब आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तब आप एक सिचुएशन को लेके अपना नज़रिया बदल पाएंगे. सो इसीलिए आपको अभी थोड़ा-सा किसी से बात करना चाहिए, शायद कोई आपको हँसा दे, एंड उससे आप जिस चीज़ में अभी स्टक है ना, आप उससे बाहर निकल पाएँगे. दैट्स द थिंग. ग्रेट, वेरी नाइस कार्ड. Sagittarius. That's all for reading, Sagittarius. I'll see you guys in the next week. Now we'll move on to the air signs, that is Aquarius. Okay, so it's air signs, so definitely we have to change the candle color. All right, we have changed the candle color. मेरे पास एक lavender color भी था, but I didn't have many of it, so I thought that इसको ही लगाते हैं. मुझे वो lavender color बहुत अच्छा लगा. It's amazing. I just love it. I just love that color. Okay, let's go to Aquarius.
Aquarius, please give me some good news. I really expect it from you now. Okay. All right, Aquarius. We'll start off with you. Am I audible? I hope so. I am. नहीं तो फिर यहाँ से वीडियो पूरा शूट करना पड़ेगा. Hi Aquarius, welcome to your reading. So, you are going to receive some unicorn messages in this video, and then followed by a tarot message for the coming week, and then I'll pull out a suggestion card for you from the oracle deck. Okay. तो मैं आपको बता दूं कि रीडिंग में हिंदी में करूँगी, so please be little cooperative. All right, I'm expecting you to be little cooperative in this, Aquarius. Okay. All right, Aquarius. Let's see that what are the messages from the unicorns for you. Wow, lovely. Aquarius is generally so excited that it reflects in the readings also, you know. Aquarius, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है ना आपके अंदर, या फिर बहुत कुछ सोचते रहते हैं आप, इतना ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि एनर्जीज ऐसी हो जाती है ना. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द Aquarius from the unicorns. All right, let's see that. Surprise! Look for the unexpected today. Great. Thank God. You actually gave me a good news because you know you can see there is unicorn, there is peacock, there is deer. Yes. See. Then there is a fish also. Fish bhi hai. Great, Aquarius, great. Finally. And bottom of the deck is magic. There is magic around you, so expect excitement and joy. Magic है आपके इर्द गिर्द. सरप्राइज भी मिलेगा आपको. लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं टैरो कार्ड्स. लेट्स सी दैट एक्वेरियस, व्हाट डू वी हैव फॉर यू हियर. Page of Wands, King of Swords, and Four of Pentacles. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Wow, lovely. I think that is a surprise. Huh. Okay, Aquarius. So, I see you having a new beginning in something. ओके, बहुत अच्छी चीज़ है ये. आप किसी चीज़ में एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नई एनर्जी के साथ आने वाले हैं. एंड राइट नाउ यू आर ऑल सेट, यू आर ऑल प्रैक्टिकल, यू आर ऑल प्रिजर्व्ड. आपने सोच के रखा हुआ है कि इस बार नो मिस्टेक्स, सब कुछ सही करना है, कुछ गलत नहीं करना है, सब सही होगा अब. ठीक है. एंड अब आप बहुत ही ज़्यादा पैसे के मामले में भी पर्टिकुलर हो चुके हैं. नाउ यू हैव स्टार्टेड सेविंग मनी. ठीक है, अब आप अपने पैसों को भी बचाते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, एंड अब आप करेंगे भी. अब से दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एटलीस्ट अभी तो करेंगे, आगे का नहीं पता. एंड आई ऑल्सो सी यू स्टार्टिंग अ न्यू थिंग और इधर गेटिंग अ प्रमोशन फॉर अ लॉट ऑफ यू. That either you'll get a promotion or you'll start a new thing, a new life, a new stable income will come, a new stable family will happen. Okay. And ये सब कुछ होगा अभी आपके डिसीजन से. आपके सी एयर साइन की एनर्जी भी है यहाँ पे. अभी आप कंप्लीटली अपने पावर में आ रहे हैं. यू आर लाइक ओके, आई डोंट गिव अ शिट. जो मुझे करना है मुझे करना है. आई विल डू इट, एंड आई विल डू इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई लाइफ. आई विल डू इट बिकॉज आई नीड टू डू इट. मुझे ये करने की ज़रूरत है तो मैं करूँगा या मैं करूँगी. दैट इज़ वॉट रिक्वायर्स मनी. सब सब पैसा देखते हैं तो मैं भी पैसा ही देखूँगा, या मैं भी पैसे पर ही फोकस करूँगा. जब सब पैसे पे ही फोकस कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा. ठीक है, गुड थिंग, गुड अप्रोच, बट टू वाइल्ड. आई थिंक किसी ने आपको पहले परेशान किया है बहुत, पैसे को लेके बहुत सुनाया है. ऑल राइट, let's see what are the messages for you from Archangel Michael. If you people don't know, I'll tell you guys. Archangel Michael is
यू कैन से लाइक एयर साइंस ओनली, क्योंकि उनके पास भी स्वर्ड्स हैं एंड स्वर्ड्स की एनर्जी एयर साइंस की भी होती है. सो उनकी भी स्वर्ड्स की ही एनर्जी होती है. ही ऑल्सो स्पीक्स द ट्रुथ. एयर साइंस ऑल्सो स्पीक्स द ट्रुथ. दे डोंट हेजिटेट. So that is why Archangel Michael messages are very good for you, Aquarius. But unfortunately, I cannot give you these guidance in the coming time. Yes, sorry to break your heart, but आर्केंजल माइकल का ये डेक मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी आने वाले टाइम में. अभी मैं कर ले रही हूँ, बाद में मैं नहीं करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रिजर्व दिस डेक. मैं आर्केंजल माइकल का एक दूसरा डेक खरीद लूँगी. आई हैव सीन इट. आई विल टेक इट वेरी सून. बट अभी तो यही, इसी से काम चलाना पड़ेगा. ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेज फ्रॉम आर्केंजल माइकल. पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स. ओके, ये सेम आया था अभी इनके लिए, सैजिटेरियस के लिए. But I think you will also get some help from dreams. The prayer for you is, thank you for tucking me into bed tonight and helping me enjoy a wonderfully restful night's sleep. Archangel Michael, I invite you into my dreams as my teacher, guide, and healer. Please allow me to understand this, describe a specific situation on a spiritual level, and give me guidance. Sorry, ये Sagittarius नहीं, ये Leo के लिए आया था. Yes. सेम सिचुएशन अभी आपके साथ भी है एक्वेरियस. आपको भी अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है. अपने ड्रीम्स में आर्केंजल माइकल को इनवाइट करना है, और अपने जो भी लाइफ में एक सिचुएशन है जिस पर आपको स्पिरिचुअल लेवल का गाइडेंस चाहिए या फिर आंसर्स चाहिए, जो आपको आंसर्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में नहीं मिल रहे हैं, वो आपको आर्केंजल माइकल देंगे आपके ड्रीम्स के जरिए. ही विल कम्युनिकेट टू यू थ्रू योर ड्रीम्स. सो इन्वाइट हिम इन योर ड्रीम्स एंड ही विल गिव यू आंसर्स. Great reading, Aquarius, after a very long time, and I'm super proud of you. So that was all for you, Aquarius. बहुत अच्छा लगा देखकर, and I'll see you guys in the next week. We'll move on to Gemini. Great. कैंडल का कलर चेंज हुआ, रीडिंग ही चेंज हो गई. क्या बात है. अब पता चलेगा आप लोगों को कैंडल के कलर का इम्पैक्ट क्या होता है हमारी लाइफ में. Okay. Hello, Gemini. Welcome to your reading. So, Gemini, we'll be pulling out a unicorn message for you, which will be a supporting role for this reading, and then we'll pull out some tarot cards for you. और उसके बाद हम एक oracle deck से आपके लिए एक मैसेज निकालेंगे एक सजेशन के तौर पे. ठीक है. So let's start with the reading, Gemini. Let's see what are the messages from the unicorns for Gemini. Perspective. Examine your situation from a higher perspective. आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है जेमिनाई. फ्यूचर को लेके लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. अगर आप नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा. आप जिस चीज़ को एनर्जी देंगे वही चीज़ में एनर्जी जाएगी आपके फ्यूचर को भी लेके. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सोच विचार पर्सपेक्टिव. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द कमिंग वीक फॉर जेमिनाई. जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स. लेट्स सी दैट. ऑल राइट. लेट्स सी. द वर्ल्ड, Ace of Swords and Queen of Swords. Bottom of the deck is Four of Swords. सी, जेमिनाई की रीडिंग है तो जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स को तो आना ही था. एंड एज आई सेड के फ्यूचर को लेके आपको अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है. सो सी, नाउ यू आर गोइंग इन द फ्यूचर और यू आर ट्रैवलिंग. ठीक है. तो बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रैवल अगर आप करने का सोच भी रहे हो ना, या फिर इस सिचुएशन में जो आप ट्रांजिशन कर भी रहे हो ना, दिस इज़ नॉट वेरी ईजी. ये आपका बहुत ईजीली होने भी नहीं वाला है.
ये जो एक आपका साइकिल है ना जिसे आप एंड करना चाहते हो, ये आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट हो गया है एंड यही आपका परसेप्शन भी बन गया है अब। ठीक है, मे बी सम ऑफ यू आर लिटिल सिक और टायर्ड, यू नो, बिकॉज आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके ट्राई कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो। एंड आई थिंक वो चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है। बट आप अभी बहुत ज़्यादा अलर्ट भी हो, अभी आप सिर्फ सच बोलने वाले हो। अगर आपको पता है कि अगर लड़ाई होगी तो मैं सिर्फ सच बोलूँगा, अगर कुछ भी मैटर होगा तो मैं सिर्फ सच बोलूँगा, मैं कुछ छुपाऊँगा नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा करूँगा बट मैं इस बार शांत नहीं रहूँगा। थोड़ा-सा मुझे आप लोग अग्रेसिव भी लग रहे हैं इस टाइम पे जेमिनी। राइट नाउ यू आर वेरी अग्रेसिव। अभी आप बहुत झगड़ा करने के मूड में भी हैं। अगर आपसे कुछ झगड़ा करने के लिए आएगा तो आप रुकोगे नहीं, ठीक है ना? आप कर लोगे। तो दिस इज़ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। थोड़ा-सा आप इस चीज़ का भी ध्यान दो, क्योंकि आप अभी बहुत ही ईज़िली ना ट्रिगर हो सकते हो एंड अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ट्रिगर होना ईज़िली ऐसे, ये आपकी वीकनेस बन जाएगी ना। So this is what you need to work upon. All right, Gemini, calm down, cool down a little bit. Let's see what are the message for you from Archangel Michael. Let's see that Archangel Michael आपको क्या messages देना चाहते हैं. What are the messages for you? Okay. Guarded and protected. The prayer for you is: thank you for protecting my loved ones and me, ensuring that we are safe and that all of our needs are met. I now accept your help gratefully and gracefully, knowing that it's right for me and all others to accept heavenly assistance. आई थिंक आपको ना अभी जो भी आप पाना चाहते हो उस पर फोकस करने से ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास जो है अभी आप उसको लेकर थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस दिखाओ। जेमिनी, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जिसको पाना चाहते हो उसके लिए दुखी होगे इससे अच्छा ये है कि सॉरी, रियली सॉरी। ओके, सो यू नीड टू बी लिटिल ग्रेटफुल टुवर्ड्स व्हाट यू हैव जेमिनी बेसिकली। आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर इससे अच्छा बेहतर है कि आप पहले ग्रेसफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि यूनिवर्स ने आपको क्या दिया है। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर रीडिंग जेमिनी। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीक एंड वील मूव ऑन टू लिब्रा। हाँ, ऐसे ही होता है, हम कभी कभी ना अपने लाइफ में भूल जाते हैं कि हम आज जहाँ पर हैं वहाँ पर आने के लिए हमने कितनी मेहनत की थी। इट्स ओके, आई नो आप लोग सीख जाएंगे इन चीज़ों को भी। लाइफ है, फेजेस आते ही रहते हैं। ऑल राइट, let's move on to Libra. Hi, Libra. Welcome to your reading. So, Libra, I'll be pulling out a card for you as a supporting card, and then I'll clarify it with tarot cards. And then I'll pull out a suggestion card for you from another oracle deck. All right. So, let's start. Let's see, Libra, what do we have for you? All right. Archangel Michael itself. Oh my god, wow. Use the sword of truth to help the world. Come on, speak up. Be truthful towards you and others. Bottom of the deck is dignity. आर्केंजल माइकल का ही कार्ड आ गया है आपके लिए। अब तो लग रहा है आर्केंजल माइकल का तो सजेशन कार्ड क्या ही निकालूं, अब तो ऑर्डर लगेगा मुझे निकालने में। सच बोलिए लिब्रा, कम ऑन तुला राशि वालों, सच बोलिए आप। टाइम आ चुका है अब आपके लिए एक्शन लेने का, जस्टिस करने का, सच बोलने का। कम ऑन लिब्रा, जस्टिफाई योर नेम लिब्रा। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लिब्रास। तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स आने वाले एक वीक के लिए, 1 वीक, एक हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स। लेट्स सी दैट। कम ऑन लिब्रा। ओके,
Nine of Wands, Ten of Cups, the Fool. Bottom of the deck is Three of Swords. फाइनली वो होने जा रहा है जो हो जाना चाहिए था बहुत पहले लिब्रा आपके लाइफ में। तो अब आप फाइनली थक हार चुके हैं, आप रियलाइज कर चुके हैं कुछ नहीं हो सकता। जिस चीज़ के लिए मैं इतना परेशान था उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब अपनी लाइफ में अपनी सुख शांति के लिए, अपनी फैमिली के पीस के लिए अब मुझे उस नई शुरुआत को करना ही पड़ेगा। भले ही वो चीज़ मुझे कितना भी ज़्यादा पेन दे, मुझे कितना भी ज़्यादा हर्ट करे, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट, आई हैव टू डू इट। होता है ऐसा लिब्रा, कोई बात नहीं, लाइफ है, होता है एंड करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या करें, अभी लाइफ है ना। तो अब आप इसे करिए और मूव ऑन करिए जल्द से जल्द अपनी लाइफ में। खुद को आप बहुत फाइट कर चुके, आप बहुत स्ट्रगल कर चुके, अब आप फाइनली उस चीज़ को ख़त्म करिए और चीज़ों को क्लोजर देकर नई शुरुआत करिए सच्चाई के साथ। दिस टाइम बी लिटिल केयरफुल। वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड रीडिंग, बट कहने के लिए इसके पीछे की कथा हम सबको पता है लिब्राज, है ना, क्या हुआ है आपके साथ। ओके, लेट्स सी what are the messages for Libra from Archangel Michael. What are the suggestions that Archangel Michael wants to give to Libra? बॉम्बार्डिंग रीडिंग हो जाएगी अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा बॉम्बार्डिंग कार्ड आ गया था। आई एम टेलिंग यू, ओह माय गॉड, you created this situation and you have the power to change it. The prayer for you is thank you for letting me lean on your strength and for reminding me of my personal power. Please guide me to manifest and heal according to divine will, creating peace and blessings for everyone involved. Oh my God. Libra, what should I say? जैसे ही मैंने कहा बॉम्बार्डिंग मैसेज आ जाए कुछ, तब तो फिर ओ माय गॉड क्या ही बोला जाए। सो बेसिकली जिस मेस से अभी आप निकल रहे हैं वो मेस आपने खुद ही क्रिएट किया था। यू आर अ पार्ट ऑफ इट। बेसिकली दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू नाउ लिब्रा। एंड अब अपने और अपनी फैमिली की सुख शांति के लिए आपको ही इसे चेंज करना है एंड वो चेंज करेंगे आप। अब आप करेंगे उस चेंज को जो चेंज करना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। आई नीड टू से एनीथिंग एल्स। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट say much on this now. You know what you have to do, Libra. You know, right? So I hope that you will do it, and I'll see you guys in the next week. That was all for your reading, Libra. Now we'll move forward to water signs, Pisces. जब ऐसी रीडिंग्स आती है तो मैं बड़ी स्पीचलेस हो जाती हूँ ऐसी रीडिंग्स देखकर। बुरा भी लगता है, शॉकिंग भी लगता है, मिक्स फीलिंग्स होती हैं। But see, this is a proof कि cards are so accurate, the readings are so accurate, and ये definitely एक specific group of people के लिए ही है, ये भी मुझे पता है। I'm sure सबके लिए नहीं है ये readings, it's not for everyone. And अगर आप इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं तो definitely आपके लिए, मैं ये भी बता दूँ। All right. Hi Pisces, welcome to your reading. So Pisces, we are going to pull out a unicorn card for you as a supporting card and then I will clarify it with tarot cards. और फिर हम आपको देंगे oracle deck से suggestions. All right. So let's start off with it. Let's see what are the messages for Pisces. मीन राशि वालों के लिए यूनिकॉर्न्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स, चलिए देखते हैं। All right. Prompting, oh God, ये तीसरी बार आ गया आज ही। कॉल अ फ्रेंड टुडे, प्लीज आप लोग कॉल कर लीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। सर्विस बैकग्राउंड किसी की सेवा भी कर लीजिए, इसी लागे लगे हाथ। पाइसेस कॉल करिए अपने फ्रेंड्स को, चलिए लगता है आपके ही फ्रेंड्स आपसे बात करना चाहते हैं और आप नहीं कर रहे उनको कॉल।
Let's see what are the messages for Pisces from tarot cards for the coming week. आने वाले एक हफ्ते के लिए मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स, चलिए देखते हैं। Ace of Wands, Six of Swords and Death. Bottom of the deck is Ten of Cups. Great, not bad. Pisces काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। सो डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई न्यूज़, एक गुड न्यूज़, एक नई सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है। यू आर गेटिंग अ चांस टू डू समथिंग नाउ, ठीक है, और आप उसे कर होपफुली करेंगे। होपफुली, आई कैन नॉट से कि आप करेंगे, बट होपफुली आप करेंगे। एनर्जी तो बन रही है। आई ऑल्सो सी यू मूविंग टूवर्ड्स द बेटर डेज, द कामर डेज। में भी कुछ लोग कुछ टाइम पहले इतने अच्छे हालात में नहीं थे, या फिर इतनी अच्छी एनर्जीज में नहीं थे, या बिजी थे, बट अब आप थोड़ा अपने आप को एक नई सोच की तरफ, या कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, तो कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं फॉर अ वेकेशन, या फिर फॉर एन्जॉयमेंट, या कुछ काम के लिए भी जा सकते हैं। एंडिंग्स भी दिख रही हैं मुझे, सो मे बी सम ऑफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर सिचुएशन और योर लाइफ। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे आप पाइसेस, ऑल राइट। यहाँ पे भी देखिए फैमिली के साथ ही लग रहा है, ट्रैवल भी करेंगे, फैमिली के साथ ही टाइम भी स्पेंड करेंगे, तो मुझे काफ़ी फैमिली फैमिली वाला दिख रहा है। और एक नई जो अपॉर्चुनिटी है, ये है, तो उसमें काफ़ी दम तो है, काफ़ी पैशनेट तो है, बट आप इसका कुछ करेंगे कि नहीं पता नहीं। अब आप इसमें क्या करेंगे, लेट्स सी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है विच इज़ पेंडिंग, बट अगर आप किसी से बात करेंगे इसके बारे में, आई थिंक तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। या फिर हो सकती है आपकी किसी से बात हो, या आप किसी से मिलने के लिए ही जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवल मिलने के लिए भी हो सकता है, कि चलो मिलते हैं, फ्रेंड से बात हो एंड लगे कि चलो मिलते हैं, ऐसा भी प्लान हो सकता है। हुँ? तो आप चले जाओ शायद कहीं, लेट्स सी। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। ये तो नहीं है, अभी मैंने स्टार्ट ही किया था। लेकिन आपके लिए ना ये ट्रैवल वगैरह बड़ा थकान वाला हो जाता है, यू डोंट एन्जॉय दिस अ लॉट। आई थिंक आपको मन नहीं करता इतना करने का ये, बट आपको कर लेना चाहिए ना, अच्छा रहेगा। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम आर्कएंजल माइकल, Pisces. Decide to be happy now. It's time to leave this unhealthy situation है bottom of the deck. तो बेसिकली आप ये सब जो भी अभी करेंगे ना, ये जो होगा ना, ये आपके हैप्पीनेस के लिए ही होगा। थोड़ा सा लाइफ में खुश होने के भी तो बहाने चाहिए ना, नहीं तो आप करोगे क्या लाइफ में, एक बात बताओ, कुछ तो करोगे। थोड़ा तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो अच्छी मेमोरीज बनाओगे, है ना। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा करना, आप इसको करिए। और आज आप खुश रहेंगे तो बाद में आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि यार हमने पहले ये नहीं किया, काश कर लिया होता। आज शायद आप इसकी वैल्यू ना समझें, लेकिन कल आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं, आपको समझ में आता लेकिन दूसरों को नहीं आता, तो मे बी दूसरों को समझ में आएगा, बट आएगा ज़रूर। तो उसके आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सब होगा। बस अभी आप प्रेजेंट में जिए। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू पाइसेस। That's all for your reading, Pisces. And now we'll move on to Cancer. All right. So see, coincidence. हमने अभी वाटर साइंस का रीडिंग स्टार्ट किया है, तो ब्लू कलर की कैंडल मिल गई, क्या बात है। और आर्कएंजल डेक भी देखिए, कार्ड्स ब्लू कलर के हैं। वाओ, अच्छे कोइंसिडेंसेस हैं, आई लाइक इट। आई लव कलर्स, आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। कलर्स का इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे बहुत ज़्यादा, हर कोई नहीं समझता है इस बात को। हेलो कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके कैंसर,
So we are going to pull out a unicorn card for you, which will be a supporting card, and then we'll clarify it with the tarot cards. And then we will pull out an oracle card for you as a suggestion. All right, let's see what are the messages for Cancer. कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स, यूनिकॉर्न्स खास तौर पे. It is the lengthiest video of my channel till now, so let's see that. I'm really excited, to see कि कितना लंबा वीडियो बनेगा ये. All right, Cancer. Magic. There is magic around you, so expect excitement and joy. Wow, Cancer, good news. There is magic around you, and I think it is regarding your future. Let go of the past and move forward. It is regarding your future, Cancer. Great. Okay, let's see that. What is this magic? What are the messages for Cancer आने वाले 1 week के लिए, आने वाले 1 हफ्ते के लिए? कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स? चलिए देखते हैं. लेट्स सी दैट. ओके, 5 of cups, 4 of cups, Knight of cups. Bottom of the deck is Page of cups. ओके, चलो अब देखो वाटर साइंस का रीडिंग हो रहा है तो कप्स में भी आने लगे कार्ड्स. अच्छा, तो कैंसर आप जिस सिचुएशन को लेके बहुत नेगेटिव हो रहे थे ना, अब आप उस चीज़ को प्लीज़ नेगेटिवली लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली कुछ गाइड कर रहा है. एंड अभी तक आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब आपको ध्यान देना चाहिए. यूनिवर्स इज सेंडिंग यू एन ऑफर और अ सरप्राइज और अ मैजिक, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज यू विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी. मैं आपको बता दूँ तो यूनिवर्स आपकी तरफ मैजिक भेज रहा है, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. यू आर इन कंप्लीट इग्नोरेंस, इन रिजेक्शन. यू डोंट वांट इट. आई थिंक आपको इस पर ध्यान देना चाहिए एंड आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ऑफर भी आ रहा है आपकी तरफ. एंड नाउ इट्स अप टू यू दैट वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट. It can be a love offer, it can be a work offer, it can be anything, but it's going to be a very magical thing. Okay, let's see what are the messages for you from Archangel Michael. चलिए कैंसर, देखते हैं अभी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. Okay, it's time to leave this unhealthy situation. The prayer for you is, Archangel Michael, what parts of my life do I need to focus on more closely right now? Thank you for helping me hear your answers and for giving me the courage to make healthy choices in my life. So basically अभी आपको अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस लेने चाहिए, हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, हेल्दी लोगों को, हेल्दी सिचुएशंस को, हेल्दी एनर्जीज को ही एंटरटेन करना चाहिए, टॉक्सिक या अनहेल्दी लोगों को नहीं. ओके, एंड अपने हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए, एंड आपको और गाइडेंस भी मांगना चाहिए. इनफैक्ट यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहता है और आपको मांगना भी चाहिए, एंड यहाँ पर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए. एंड यू शुड आस्क फॉर मोर गुड हेल्दी एनवायरनमेंट. अभी आप अगर एक अनहेल्दी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, सो यू नीड टू चेंज इट. एंड अगर एक अनहेल्दी बॉडी में है तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. That is the sign for you, and I really love this illustration of this card. I'm telling you, जब मैंने ये देखा था ना, तब मुझे लगा था that I want this deck. So this is a very beautiful card. Can you see this? So majestic. Yeah, I loved it. That was all for your reading, Cancer. Thank you. I'll see you guys in the next video next week. Now we'll move on to Scorpio. Okay. स्कॉर्पियो की रीडिंग लास्ट में आती है, तो मैं चाहती थी कि स्कॉर्पियो की रीडिंग काश लास्ट में ना आती, बट कोइंसिडेंटली मैंने ही इस सीक्वेंस को सेट किया है, सो ऑफ कोर्स लास्ट में ही आएगी, राइट.
मैं सीक्वेंस में रीडिंग करना पसंद करती हूँ, आई लाइक इट दैट वे। बट एक सीक्वेंस ऑफ कोर्स वो भी हो सकता था, एरीज टॉरस जेमिनाई वाला, बट आई थिंक उसमें ना एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। आई वांट टू स्टे कनेक्टेड टू द एलिमेंट एनर्जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एन्जॉय इट। ओके स्कॉर्पियो, welcome to your reading, Scorpio. So, Scorpio, we are going to pull out a unicorn card for you as a supporting card, and then we'll clarify it with the tarot cards. After that, we'll pull out another oracle deck for you as a suggestion. So, that is how it goes. All right, Scorpio, first, let's see your reading then. Let's see what are the many messages from the unicorns for Scorpio. All right. Okay, Scorpio. Oh my god, I am like so done with this card today. Prompting, fourth time, call a friend today. आप लोग बातें क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? दोस्त आपस में बातें ही नहीं कर रहे हैं. Blessings. Count your blessing and the good in your life will multiply. Call a friend today. Come on guys. I mean, आप लोगों ने दोस्तों से बातें ही करना छोड़ दिया है. हाँ? Is this what does it mean? I think it somewhere also means that express your feelings to your friend. For some of you, maybe I was not able to actually, get it. आप लोगों को अपने दोस्तों से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, दोस्तों के लिए भी, सिर्फ अपनी नहीं गाइस। सो कॉल योर फ्रेंड टुडे, जिसे भी आप अपना फ्रेंड कंसिडर करते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, कॉल देम, टॉक टू देम गाइस। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द कमिंग 1 वीक। आने वाले एक हफ्ते के लिए स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स। लेट्स सी दैट। Queen of Wands, Four of Cups, the Chariot. Bottom of the deck is Ten of Cups. Okay. So I think that Scorpio, you need to talk to your friend, okay? Or maybe some of your friend wants to talk to you, but you are ignoring it. Okay? If you want, you can just give it a try. Talk to them, just listen to them, what they have to say to you. सुन लीजिए उनकी बातें, and then move on. धीरे धीरे फिर आप उनके लाइफ से धीरे धीरे निकल जाइए। आई थिंक कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक रीडिंग है ये, कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती खत्म करना चाहते हैं, बट वो आपसे नहीं खत्म करना चाहते हैं, वो आपके पीछे पड़े हैं, तब उस केस में आप क्या करें? उस केस में आप उनसे थोड़ी देर की बात ज़रूर करें, सुने उनकी बात, एक लास्ट कॉन्वर्जेशन हो, बट ओनली विद अ फ्रेंड। आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट द relationships, okay, of people. I'm talking about the friendships only. तो आप अपने फ्रेंड से बातें ज़रूर करें, और then you can close it off. Give it a good ending at a good note, and then close it off. That's all for the reading. Not for the reading, but that's all as a clarification. Let's see what are the messages from Archangel Michael for you. Eternal love. Okay. The prayer for you is, help me perceive all of the love that surrounds me so that I can feel safe receiving, expressing, and giving love. Okay. All right. I think that your family and friends need your love, and you need their love. Okay. And you need to understand this. So basically,
अगर किसी की एंडिंग होने वाली है लव उस सॉरी उस फ्रेंडशिप में, तब आप उसे प्यार से रिस्पेक्टफुली एंड करें। एंड अगर आप एंडिंग नहीं चाहते, आप नहीं चाहते दोस्ती खत्म हो, तब आप उनसे बात ज़रूर करें ये समझने के लिए कि क्या है एग्जैक्टली exactly, आपको एंड करना है, नहीं करना है। ओके, आप दोनों के मन में क्या है एक दूसरे के लिए। एंड आपके आसपास प्यार है, आपके आसपास लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं। पीपल लव यू, पीपल केयर फॉर यू, पीपल एडमायर यू, एंड आपको उनको चेरिश करना चाहिए। आई थिंक दिस इज वॉट द कार्ड्स आर ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ स्कॉर्पियो। पीपल आर कंसर्न फॉर यू। ठीक है, वो चाहते हैं कि अब आप धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ें। भले ही आपने कुछ खोया हो रिसेंटली, किसी को खोया हो, बट अब आप आगे बढ़ें। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन स्कॉर्पियो। All right, so that was all for your reading, guys. Here with this, we are ending this video, and I hope that you people enjoyed it. आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो के लिए मुझे डेफिनेटली बताइएगा। काफ़ी लेंदी हो गई ये वीडियो, बट इट वॉज समवेयर रिक्वायर्ड, है ना। सो नाउ आई विल डेफिनेटली ट्राई कि नेक्स्ट टाइम हम देखें कि इस वीडियो को हम ऐसे आगे और क्या कर सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए। मैंने अभी तो डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो को पोस्ट कर दूँगी। लव रीडिंग मैं एक जनरल निकालूँगी और उसको मैं चाहूँगी कि आप लोग देखें। होपफुली आई विल ट्राई टू पोस्ट इट बिफोर मंडे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड God bless everyone. I really need your feedback on this video because that is something that will inspire me also. मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अपना फीडबैक दें, इस वीडियो पे कमेंट करें, एंड टाइम स्टैम्प्स को देखते हुए ही अपने वीडियोस को देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वो कन्वीनियंस कर दूंगी सो दैट यू गाइज कैन check it out. All right, and it was a lovely reading, very nice. I really enjoyed pulling out cards like this. मुझे काफ़ी अच्छा लगा। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा। एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ डेक्स। टिल देन इनसे ही हम रीडिंग्स करेंगे, बट एज आई मैंशनड कि अब आर्कएंजल माइकल के डेक को आगे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आई एम सॉरी अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये मेरे पास एक लास्ट इसका पीस है, फर्स्ट एंड लास्ट, एंड आई डोंट हैव एनी अदर, एंड आई कैन नॉट लूज इट। आई वॉन्ट टू कीप इट, आई वॉन्ट टू प्रिजर्व इट फॉर माई होल लाइफ गाइज। सो अभी मैं होपफुली कल से इस डेक को पीसफुली शांति से रैप करके रख दूँगी अंदर, एंड आई विल ट्राई नॉट टू यूज़ दिस डेक एनी मोर। सो लास्ट टाइम आप लोग अभी इस डेक को देख लीजिए, उसके मैसेजेस को देख लीजिए, क्योंकि होपफुली ये लास्ट ही रहेगा। मैं इसे अब नहीं यूज़ करूँगी अपने यूट्यूब के वीडियोज़ में या फिर कोई भी रीडिंग्स में, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि समवन रियली नीड्स इट फॉर देयर लाइफ। तब तक मैं इस डेक को अब नहीं इस्तेमाल करूँगी, बिकॉज मेरा मेरा माई सोल इज़ कनेक्टेड टू दिस डेक, एंड आई डोंट वांट टू लूज़ इट टिल आई एम अलाइव। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं चाहती हूँ कि ये डेक मेरे साथ रहे। आर्कएंजल माइकल हैज़ ब्लेस्ड माई लाइफ एंड आई वॉन्ट हिज ब्लेसिंग्स। जब मैंने इस डेक को देखा था तभी मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ था कि he is my guardian angel, and he is there for me for everything। मतलब अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें तो उस धर्म में आर्कएंजल माइकल ही हैं। मेरे धर्म के अलावा जिस धर्म के लोगों को मैं समझती हूँ कि हाँ वो मेरे गाइडेंस के लिए, उनमें एक आर्कएंजल माइकल है। सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू आर्कएंजल माइकल एंड यू ऑल ऑफ कोर्स। तो आप लोगों को मैंने ब्लेस किया है आर्कएंजल माइकल के रीडिंग से, तो प्लीज़ इसकी रिस्पेक्ट रखिएगा, एंड इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा जो मैसेजेस आपको आर्कएंजल माइकल ने दिए हैं, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट यू विल सी मी आंसरिंग फ्रॉम डोरिन वर्च्यूज़ आर्कएंजल माइकल। ऐसा नहीं है कि मैं आर्कएंजल माइकल के और डेक नहीं ले सकती, मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी, और आप लोगों के लिए उससे रीडिंग भी करूँगी और आप लोगों के लिए ही लूँगी। बट ये जो है ना, दिस इज़ माइन, I don't want to lose it. This is my deck, and that's all.
This really makes me emotional. All right. Thank you so much, everyone. With this, I'm ending the video now. Till then, take care. Bye bye. God bless. And I'll see you guys in the next video.